اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ شہر کے اوپن مارکیٹ میں مہنگائی نے غریب طبقے کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اکبری منڈی اور اوپن مارکیٹ میں دالیں، گھی، آئل، چینی سمیت دیگر اشیاء ضروریہ مہنگے داموں میں فروخت ہو رہی ہیں۔ سفید پوش مزدور طبقے کی جانب سے دہائی دی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب مہنگائی کے تناسب سے اجرتیں تنخواہیں بڑھائیں یا مہنگائی کم کریں، آپ کی رعایا مشکل میں ہے۔ عوام غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ شہزاد خان ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانیں گے۔ بتائیے گا شہزاد، مہنگائی کا یہ سلسلہ کب رکے گا؟ عوام کی جانب سے کیا رد عمل دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، شہر کی اوپن مارکیٹ اور اکبری منڈی کے اندر مہنگائی کا مکمل راج نظر آ رہا ہے، اور اس سے بالخصوص سفید پوش طبقہ اور مزدور پیشہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے سفید پوش طبقے اور مزدوروں نے آج سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم صاحب یا تو اجرتوں اور تنخواہوں کو مہنگائی کے تناسب سے بڑھائیں یا پھر جو مہنگائی کی شرح ہے اس کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، کیونکہ آپ کی رعایا نظر آ رہا ہے۔ اگر دالوں کی قیمتوں پر ہم نظر ڈالیں تو 15 سے 70 روپے سرکاری نرخ نامے کے برعکس اضافی قیمتوں پر دالیں بیچی جا رہی ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں جو دال ماش دلی ہے یہ 60 سے 70 روپے اضافی قیمت کے بعد 260 روپے فی کلو گرام کے حساب سے شہر کی اوپن مارکیٹ کے اندر فروخت ہو رہی ہے۔ اس طرح دال چھلکا کی بات، دال ماش چھلکے کی اگر بات کریں تو یہ 20 روپے اضافے کے بعد 220 روپے فی کلو گرام کے حساب سے شہر کی اوپن مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح چنا فیملی کی بات کریں جس میں چنے، بیسن اور دالیں آ جاتی ہیں، تو اس میں جو دال چنا ہے یہ 20 روپے اضافے کے بعد 140 روپے فی کلو گرام کے حساب سے شہر کی اوپن مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو بیسن ہے یہ 20 روپے اضافے کے بعد 140 روپے فی کلو گرام کے حساب سے شہر کی اوپن مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور چنا فیملی میں آخر میں جو کالے چنے آتے ہیں، کالے چنے کی قیمت میں بھی 20 روپے فی کلو گرام کا شہر کی اوپن مارکیٹ کے اندر اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور سرکاری نرخ نامے کی بے توقیری کا سلسلہ جاری ہے۔ عرصہ دراز سے یہ جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ تاحال شہر کی اوپن مارکیٹ کے اندر اور اکبری منڈی کے اندر سرکاری نرخ نامے کا اطلاق کرانے میں یکسر ناکام نظر آ رہی ہے، اور اس حوالے سے آج سب سے زیادہ مزدور طبقے نے پریشانی کا اظہار کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مزدور 700 یا 800 روپے کی دیہاڑی بے مشکل کما پاتا ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے یا ان کو تعلیم دلوائے۔ وزیر اعظم سے یہ سوالات مزدور طبقے کی جانب سے آج کیے گئے۔ جی ٹھیک ہے، شہزاد خان عبدالی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ پہلے گھی 140 روپے کلو تھا، آج 270 روپے کلو ہے۔ جو بیچارہ مزدور ہے اس کی دیہاڑی اس حساب سے نہیں بڑھ رہی جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، جو امیر ہے نا وہ بھی پریشان ہے کہ یار جس کو پیسے دیں گے وہ 1000 روپے کی نوٹ پچھلے 2-4 سال پہلے 1000 روپے کا لے کے جاتے تھے تو کچھ سامان آ جاتا تھا، اب 1000 روپے کا ایک شاپر میں آپ لے کے آتے ہو۔ مہنگائی بہت زیادہ کرتی ہے، اگر تھوڑی بہت تھلے ہوئے گی چلو مزدور طبقہ جڑا نا یہ اپنی خوشحالی زندگی گزار سکے گا، تو اگر مہنگائی کرنے گے تو پھر مزدوریاں بھی تھوڑی بہت تنگ جانی چاہیے تاکہ مہنگائی محسوس نہ ہوئے، تو جب مہنگائی نہیں کرتے تو چھوٹا طبقہ کی ہوئے گا۔ ایک طرف عام عوام پر آتے ہیں تو دوسری جانب سرکاری افسران پر نوازشات کا سلسلہ جاری ہے۔ لاکھوں کا انسینٹیو الاؤنس دینے کی سفارشات منظوری کے لیے سلیکشن بورڈ کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ سرکاری افسران پر نوازشات جاری ہیں۔ لاکھوں کا انسینٹیو الاؤنس دینے کی سفارشات منظوری کے لیے سلیکشن بورڈ کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سرکاری افسران پر یہ نوازشات ہیں۔ مختلف محکموں کے افسران کو لاکھوں کا الاؤنس دینے کی سفارشات، بات کریں گے عثمان علیم سے۔ جی عثمان۔ سرکاری افسران کو لاکھوں روپے بطور انسینٹیو الاؤنس دینے کی سفارشات جو ہیں وہ منظوری کے لیے سلیکشن بورڈ کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے مختلف محکموں کے یہ افسران ہیں جن کو لاکھوں روپے انسینٹیو الاؤنس دینے کی سفارشات کی گئی ہیں، جس میں اگر بات کی جائے چیئرمین PITB اظفر منظور کو 2 لاکھ روپے بطور انسینٹیو الاؤنس دینے کی سفارشات جو ہیں وہ ارسال کی گئی ہیں۔ اسی طرح CEO پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی بنش فاطمہ سائی کو 2 لاکھ روپے بطور انسینٹیو الاؤنس دینے کی سفارشات جو ہیں وہ سلیکشن بورڈ کو ارسال کی گئی ہیں، جبکہ ساؤتھ پنجاب پورٹی ایلیویشن پروجیکٹ کے افسران کے جو نئے پے پیکج ہیں وہ بھی منظوری کے لیے سلیکشن بورڈ کو ارسال کیے گئے ہیں، جس میں سوشل موبلائزیشن اسپیشلسٹ کو 1,60,000، مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن اسپیشلسٹ کو 1,10,000 روپے جو ہے وہ تنخواہ دینے کی سفارشات منظوری کے لیے ارسال کی گئی ہیں، جبکہ ملٹی سیکٹورل نیوٹریشن سیل کے جو ڈپٹی پروگرام ڈائریکٹر پاپولیشن کو 3 لاکھ روپے، ڈپٹی پروگرام ڈائریکٹر نیوٹریشن کو 3 لاکھ اور فائنانس اسپیشلسٹ کو 3 لاکھ روپے بطور تنخواہ دینے کی سفارشات جو ہیں وہ منظوری کے لیے سلیکشن بورڈ کو ارسال کی گئی ہیں۔ جی عثمان علیم، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آگاہ کر رہے تھے۔
पंजाब का सिक्योरिटी प्लान मुरतब करने वालों का भी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा सामने आ रहा है। महकमा दाखिला के मातहत पंजाब स्ट्रेटेजिक बोर्ड के अफसरान ने भी हुकूमत से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। इस पर बात करेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। बोर्ड है और ये महकमा दाखिला के मतहत काम करता है और इसमें पूरे पंजाब की सिक्योरिटी के हवाले से ये प्लान मुरतब करते हैं और इस पर अब महकमा दाखिला की जानब से एक समरी अवानी वज़ीर-ए-आला को अर्साल की गई कि पंजाब स्ट्रेटेजिक बोर्ड के ऑफिसर्स की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी की तर्ज पर उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। अब ये तनख्वाहों में इजाफा क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी के बगैर तो हो नहीं सकता और इस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ये मामला स्टैंडिंग कमेटी बराए कबीना जो ख़जाना की है उनको अरसाल किया है कि वो इस मामले को टेक ओवर करें और देखें कि इन ऑफिसर्स की तनख्वाहों में इजाफा किस हद तक किया जा सकता है और ना सिर्फ उनकी तनख्वाहों में इजाफा बल्कि आइंदा तैनातियों के हवाले से जो रूल्स की तरमीम है इस हवाले से भी एजेंडा वो ऐवान वज़ीर-ए-आला को पेश किया गया, जिस पर अब स्टैंडिंग कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि इनके रूल्स क्या होंगे और इनकी तनख्वाहों में पे पैकेजेस में किस हद तक इजाफा किया जा सकता है, या किसी एक ऑफिसर की तनख्वाह में इजाफा होगा या फिर दीगर जो तैनात ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा हो सकेगा। तो इस पर अब स्टैंडिंग कमेटी ये मामला देखेगी। आइंदा होने वाले इजलास में इस पर डिस्कशन जो है वो की जाएगी और ये फैसला होगा कि पंजाब स्ट्रेटेजिक बोर्ड के ऑफिसर्स की तनख्वाहों में भी इजाफा किस हद तक किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। महकमा दाखिला ने 31 दिसंबर 2021 तक मजीद 5 लाख बुक वाले असलहा लाइसेंस कंप्यूटराइज्ड कराने का फैसला किया है। सवाल से आपको बताएं कि महकमा दाखिला का मजीद 5 लाख किताबी असलहा लाइसेंस कंप्यूटराइज करने का फैसला किया गया। कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कब तक ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैसे खोकर बताइए। दाखिला ने 31 दिसंबर 2021 तक मजीद 5 लाख बुक वाले किताब वाले असला लाइसेंस को कंप्यूटराइज करने का फैसला किया है और इस हवाले से समरी जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब को अरसाल कर दी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमन आगा का कहना है कि असला लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन जो है वो नादरा के साथ मिलकर की जा रही है और डेट जो 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो गई थी उस डेट को 31 दिसंबर 2021 तक तोसी की जा रही है ताकि जो बुक वाले 5 लाख असला लाइसेंस बच गए हैं उनकी भी कंप्यूटराइजेशन की जाए। इसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने कहा कि बाकी अगर कोई लाइसेंस इसके बाद भी कंप्यूटराइजेशन नहीं कराएगा तो वो असला लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे और जाली असला लाइसेंसों के लिए क्रैकडाउन शुरू किया गया और तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हदायत की गई है कि वो अपने अपने तौर पर जो जाली असला लाइसेंस है उनकी वेरिफिकेशन करें और जो जाली है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। जी कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, लाहौर शहर में ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। फिरोजपुर रोड के मुख्तलिफ मुकामात पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर शहर में ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। इस पर बात करेंगे अली रजा से। अली रजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की? जी बिल्कुल, इस वक्त हम फिरोजपुर रोड लाहौर ब्रिज के करीब मौजूद हैं जहां पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है और जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आज चूँकि साउथ अफ्रीका की टीम ने कज़ाफ़ी स्टेडियम आना था जिसकी वजह से फिरोजपुर रोड को मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया गया था और जिसकी वजह से लोगों को मुतबादिल रास्ता फराहम ना करने की वजह से ट्रैफिक का प्लान जामिया प्लान ना होने की वजह से लाहौर की सड़कों पर रश देखा जा सकता है। इस वक्त फिरोजपुर रोड मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक का बहाव इस कदर ज़्यादा है कि गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। कुर्तबा चौक, मुस्लिम टाउन, इचरा और इसके साथ साथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल से लेकर लाहौर ब्रिज तक गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ट्रैफिक सुस्त हो जाने की वजह से जो सफ़र आप मिनटों में तय करते हैं वो आपको घंटों में तय करना पड़ा है। वार्डन्स यहाँ पर तैनात हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानगी को यकीनी बनाया जा सके, लेकिन ट्रैफिक का बहाव इस कदर ज़्यादा है। और दूसरी बात, यहाँ पर इस वक्त जो पीक आवर्स हैं, आज मंडे है, लोग अपने दफातर से छुट्टी करके अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं, तो इस वजह से इस वक्त फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक का बहाव इस कदर ज़्यादा है कि फिरोजपुर रोड मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक ज़्यादा हो जाने की वजह से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी अली रजा, बहुत शुक्रिया आपका। हायर एजुकेशन कमीशन का असातिज़ा को 10 करोड़ रुपए तक रिसर्च ग्रांट देने का फैसला किया गया है। CPEC से मुतल्लिका रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा भी अहले तसव्वुर होंगे।
हायर एजुकेशन कमीशन ने असातिज़ा को 10 करोड़ रुपए तक रिसर्च ग्रांट देने का फैसला किया है। सीपैक प्रोजेक्ट पर तहकीकी काम के लिए यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा को 10 करोड़ रुपए तक रिसर्च ग्रांट मिलेगी। HEC बेहतरीन रिसर्च प्रोजेक्ट जमा कराने वाले असातिज़ा को कैटेगरी 2 में 5 करोड़ रुपए देगा। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में तैनात कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को भी रिसर्च ग्रांट के लिए अहल करार दिया गया है। HEC ने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन टीचर्स के मुस्तकिल मुलाजमत की शर्त आयद की है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च मुकर्रर की गई है। HEC की जानिब से रिसर्च प्रोजेक्ट्स के मौज़ूआत से मुतालिक तफसीलात वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। बल्दियाती एक्ट 2019 का तरमीमी नोटिफिकेशन जारी। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में टाउन बहाल कर दिए गए हैं। MCL में टाउन काउंसिल को भी बहाल कर दिया गया है। बल्दियाती एक्ट 2019 का तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के बाद लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के टाउन्स बहाल हो गए हैं। MCL में टाउन काउंसिल को भी बहाल कर दिया गया है। टाउन कमेटी की तादाद 160 से कम करके 10 रह गई है, जबकि विलेज पंचायत एक्ट को खत्म कर दिया गया है। तरमीम के मुताबिक विलेज नेबर्सहुड के इलेक्शन गैर जमाती होंगे। विलेज नेबरहुड के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा 13 मेंबर होंगे। तरमीम के बाद अब विलेज पंचायत एक्ट को लोकल गवर्नमेंट एक्ट का हिस्सा बना दिया गया है। जबकि ऐवान वज़ीर आला के लिए डेविस चौक पर खूबसूरत मॉन्यूमेंट बनाने का प्लान तैयार कर लिया गया है। LDA ने चारों एतराफ से नजर आने और शहरियों को रास्ता बताने वाले फीचर्स के साथ 3D डिजाइन तैयार कर लिया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऐवान वज़ीर आला के लिए डेविस चौक माल रोड पर खूबसूरत मूवमेंट बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। LDA ने डेविस चौक माल रोड पर नया मूवमेंट बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए चारों तरफ से नजर आने और शहरियों को रास्ता बताने वाले फीचर्स के साथ 3D डिजाइन तैयार कर लिया गया है। चीफ इंजीनियर LDA ने DG की हिदायत पर मूवमेंट का डिजाइन तैयार किया। मूवमेंट पर 20 लाख रुपए लागत आएगी। मूवमेंट पर नहर, डेविस रोड, गवर्नर हाउस और ऐवान वज़ीर आला को रास्तों की निशानदेही की जाएगी। मूवमेंट डिजाइन की मंजूरी के बाद तामीर का काम शुरू किया जाएगा। और अब बात ओल्ड रावियंस यूनियन के इंतखाबात की, तो मारूफ अदाकार सुहेल अहमद अजीजी का रावियन गैलेक्सी और सागा ग्रुप के उम्मीदवारों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सुहेल अहमद अजीजी ने कहा, अपने तमाम चाहने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो गवर्नमेंट कॉलेज की बेहतरी और ओल्ड रावियंस की फलाह बहबूद के लिए जहांजेब नज़ीर खान के पैनल को वोट दें। अदाकार सुहेल अहमद ने कहा कि SSP जहांजेब नज़ीर खान सदारत और डॉक्टर अब्दुल बासित सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार हैं। उधर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता ओल्ड रावियंस की तरफ से गैलेक्सी और सागा ग्रुप के उम्मीदवारों को मजबूत तरीन और बेहतरीन उम्मीदवार करार दिया जा रहा है। बेदिया रोड पर महमूद फार्मेसी की 24वीं ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। MPA मियां नसीर अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बेदिया रोड पर महमूद फार्मेसी की 24वीं ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर MPA नसीर अहमद, चौधरी मोहम्मद सादिक, मोहम्मद अहमद मकसूद, मोहम्मद जीशान, बैरिस्टर चौधरी साजिद इकबाल, मोहम्मद जैन मकसूद, चौधरी मोहम्मद शाहिद, बिलाल मकसूद, चौधरी फैसल जुनेद और मोहम्मद अब्दुल्ला मकसूद ने शिरकत की। इंतजामिया महमूद फार्मेसी का कहना था कि आवाम के लिए आला मियारी अद्वियात रखी गई हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और IG बलोचिस्तान की पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स आमद। मुख्तलिफ शोबा जात का दौरा, जबकि कोयटा में सेफ सिटी के आगाज़ के लिए पंजाब से MOU करने की ख्वाहिश कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के दौरे सेफ सिटी अथॉरिटी पर IG बलोचिस्तान राय ताहिर, MD राव सरदार अली खान और COO मोहम्मद कामरान खान ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। MD सेफ सिटी राव सरदार अली खान और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान ने अथॉरिटी बारे ब्रीफिंग दी। अफसरान ने वज़ीर आला को ई चालान सिस्टम बारे बताया कि सिक्योरिटी इदारे लाहौर में 8000 कैमरों की मदद से सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर से शहर भर में मॉनिटरिंग के अमल का जायजा भी लिया। मीडिया सेंटर, पुकार 15, एमरजेंसी 15 सेंटर समेत दीगर शोबाजात का दौरा करते हुए जाम कमाल का कहना था कि आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए सेफ सिटी अच्छा मंसूबा है। बहुत जल्द कोयटा सेफ सिटी मंसूबे का भी आगाज कर दिया जाएगा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सदर मियां तारिक मिसबा, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी, साबिक सदूर और सनत व तिजारत की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला कहते हैं नैब को बिजनेस और बिजनेसमैन के मामलात से दूर रखना चाहिए। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और चैम्बर कायदीन, साबिक सदूर सुहेल लाशारी, मियां मिसबाह रहमान, जफर इकबाल चौधरी और एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान से मुलाकात की।
ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانوی والا نے کہا کہ حکومتیں بدلیں مگر اکنامک پالیسی یکساں رہنی چاہیے۔ سلیم مانوی والا نے کہا کہ نیب کو بزنس امور اور بزنس مین سے دور رہنا چاہیے۔ کیس غلط ہو یا صحیح، نیب کی بزنس مین مداخلت مکمل بند ہونی چاہیے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانوی والا نے کہا کہ پہلے ایف بی آر نوٹسز دے کر رقم نکال لیتا تھا، پی ٹی آئی حکومت نے اس اقدام سے ایف بی آر کو روک کر اچھا اقدام کیا ہے۔ اب چیئرمین ایف بی آر کی منظوری کے بغیر کسی اکاؤنٹ سے ایک پیسہ نہیں نکالا جا سکتا۔ سلیم مانوی والا نے کہا کہ ملک میں صنعتی مصنوعات کی ٹیسٹنگ لیبز کا نہ ہونا تشویشناک امر ہے۔ مرگی کے عالمی دن کی مناسبت سے پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں واک کا اہتمام کیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو پروفیسر خالد محمود کا کہنا تھا کہ ملک میں 1% افراد مرگی کے مرض میں مبتلا ہیں۔ مرض قابل علاج ہے، اس حوالے سے آگاہی انتہائی اہم ہے۔ پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں عالمی یوم مرگی پر آگاہی واک میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود، پروفیسر احسن نعمان اور پروفیسر انور چودھری نے شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ رہیے باخبر اور دیکھتے رہیے سری 42۔